student class 10th. So in previous class I explained you about the formula of sum of n term of an AP. AP के n terms का sum क्या होता है उसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. Now today we will discuss about the questions, problems based on sum of n terms of an AP, right? So first recall the formula, that what was the formula for finding the sum of n terms of an AP. So formula was S equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. This is our 8th lecture in which I'm going to explain you what is the formula for sum of n term of an AP, right? So S equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d, where S is the sum of n terms of an AP, n is number of terms in AP, A is the first term of an AP, B is the common difference of AP. So this was the formula for finding the sum of n terms of an AP. N upon 2 2a plus n minus 1 into d. S is sum of n term, n is number of term, a is first term, d is common difference of AP, right? So we will use this formula. So note down this formula in your classwork copy, right? I'm going to solve the exercise based on this formula. So come to the next exercise, that is exercise 5.3. I will explain here a few questions, right? And on the basis of the same, you will have to do other question of NCERT at your home, right? And it is not all about NCERT questions. You will have to solve R.S. Agrawal questions also, right? So I'm going to solve the NCERT questions of exercise 5.3. Come to the exercise. Note all these things because whatever I'm writing on the board, these all things are very important, right? So जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखे जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो आपके नोटबुक में वो जरूर होना चाहिए. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. 5.3 में फर्स्ट का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं और फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं. बाकी फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन आप लोग करोगे. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी. आपको सम फाइंड आउट करना है. फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी. यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है, आपको इसका सम फाइंड आउट करना है. फर्स्ट का सेकेंड. फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग एपी, राइट? सो सीक्वेंस इज गिवन मीन्स एपी इज गिवन -37 -33 -29 to 12 term. Correct? You have to find the sum of this sequence, है ना? ये AP है, ठीक है? इसका ये गिवन है क्वेश्चन में कि दिस इज एन AP. इसका आपको सम फाइंड आउट करना है टिल 12 टर्म्स. तो देखिए यहाँ पर A की वैल्यू क्या है? -37. कॉमन डिफरेंस क्या है? -33 -37. Common difference is the sum of difference of two consecutive term. दो consecutive term के difference को कहते हैं. तो -33 -37 -33 -37. It will become -33 plus 37. Subtract कर दें. 37 minus 33 equal to 4. Correct? तो common difference is 4. Now sum you need to find out. Sum of n term you need to find out while n is how many terms are there? 12 terms. So number of terms are given 12, right? So A is first term is -37, D is 4, N is 12. Now come to the formula, sum of n terms. Sometimes it is also represented as Sn.
sum of n term equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into t. N upon 2 2a plus n minus 1 into t, where what is the value of n? 12 upon 2 2 into a is minus 37 plus n minus 1 is 12 minus 1 into d is 4. So 12 upon 2 means 6. 2 6 ja 12. Here 2 7 ja 14, carry 1, 2 3 ja 6 1 7 minus 74. And here 12 minus 1 11, 11 4 ja 44. Will become 6 into minus 74 plus 44. 4 minus 4 0, 7 minus 4 3 minus 30, and will become minus 180. So minus 180 is the sum of 12 term of the given AP. जो गिवन AP है उसके 12 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा? minus 180, राइट? तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर क्लास for copy. Now we will solve the next question of the first question, right? Next part of the first question. Again, in the next part of the first question, you have to find the sum of n terms, right? See, fourth part of the same question. Fourth part. Series is given 1 upon 15, 1 upon 12, 1 upon 10, up to 11 terms. Correct? 1 upon 15, 1 upon 12, 1 upon 10 till 11 term. तो यहां पर हमें फिर से क्या दिया हुआ है? 11 टर्म्स दिए हुए हैं. आप लोग को क्या निकालना है? सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी. जो एपी दिया हुआ है इस एपी के 11 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. करेक्ट है? देखिए, सो हियर फर्स्ट टर्म इज a, that is 1 upon 50. Common difference b is 1 upon 12 minus 1 upon 15. This minus this will become एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम 1 upon 12, 1 upon 15, 12 और 15 का एलसीएम अगर हम लें तो इट विल बिकम 60, राइट? सो 12 5 जा 60 माइनस 15 4 जा 60, यानी 1 upon 60. Common difference will become 1 upon 60. Correct? Now see, common difference. Number of term in the given AP is 11. 11 term का सम निकालना है, right? And Sn you need to find out. So according to formula, Sn equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into t. N is given how many term? 11 upon 2. 2 into a is 1 upon 15 plus n minus 1, 11 minus 1 into d is common difference, become 1 upon 60. Now 11 upon 2 in bracket 2 upon 15, 2 upon 15 plus 11 minus 1 10, 10 upon 60 means 1 upon 6, become 1 upon 6 equal to 11 upon 2. एलसीएम ऑफ 15 and 6. 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? Again it will become 30. 15 ja 30, 30 is LCM. So 30, 15 2 ja 30 and 2 2 ja 4 plus 6 5 ja 30 and 5 1 ja 5. Now 11 upon 2 into 5 4 9 upon 30, 9 upon 30. Correct? So you can solve this 99 upon 60. 99 upon 60 कट करें इसको तो 3 2 3 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा. 3 3 9 3 9 3 2 6 0. So 33 upon 20. Sum of 11 term. Sum of 11 term of the given AP will be 33 upon 20. Note down. Correct? Now come to the next question. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है? Now again come to the next question, that is exercise 5.3 second question. सेकेंड का हम लोग सेकेंड पार्ट कर लेते हैं. करेक्ट?
first and third part will be in homework. Yeah? First and third part will be in homework. I'm going to solve the second part, right? Second 34 plus 32 plus 30 plus 10. करेक्ट? अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या दिया हुआ है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू 10, है ना? यहाँ पे हमें सम फाइंड आउट करना है. व्हाट विल बी द सम ऑफ द गिवन सीरीज. इन सीरीज का हमें सम फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, और क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, ये a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, a इक्वल टू 34. करेक्ट. d can be find out by 32 minus 34. It will become -2, right? But in the formula Sn equal to n upon 2. n भी तो चाहिए, है ना? क्या हमें n पता है? No, we don't have given n, but we have given the last term, that is an is 10. an पता है हमें, last term tn और an पता है. ठीक है, अगर हमें an पता है तो हमें last term an is given, so with the help of last term you can find the number of term in the given sequence. सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स हैं हम ये पता लगा सकते हैं. कैसे लगा सकते हैं? बाय फॉर्मूला दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. What is the last term of the sequence? 10. First term 34 plus n minus 1. And common difference is -2. So 10 equal to 34 plus minus 2 bracket में n minus 1. 34 will come in left side. It will become 10 minus 34 equal to -2 and -1. 10 minus 34 minus 24 equal to -2 and -1. Minus cancel, 2 12 ja 24. So n minus 1 equal to 12, n equal to 13. Minus 1 will come in right side, add with 12 become 13, है ना? तो देखिए n की वैल्यू आ गई 13. ठीक है, हमें पता चल गया कि इस सीक्वेंस में जो ये 10 है वो किस नंबर पर है, 12th टर्म है ना? तो n की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी. राइट? So I hope you all are understanding why we used this formula for finding the number of term. Number of term हमने क्यों निकाला पहले, ये आप लोग को क्लियर हो रहा होगा. Because in finding the sum जब निकालते हैं यहां पे n होना चाहिए. That's why हमने पहले n की वैल्यू निकाली. n upon 2a plus n minus 1 into d is the formula. So n की वैल्यू 12 upon 2a. a means 34. n minus 1, 12 minus 1. Where is d? d is -2. 12 upon 2a plus n minus 1 into t. करेक्ट? अब देखिए 12 upon 2 means 2 6 जा 12. मल्टीप्लाई कर दें, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 12 में से बन जाएगा 11. 11 2 जा 22. तो यहाँ पे प्लस है -22 हो जाएगा. Now 6 into 8 minus 2 6 6 minus 2 4 equal to 6 6 ja 36 carry 3 4 6 ja 24 और 3 27. 276, right? 276 is the sum of the given number. Okay? एक बार रीचेक कर लीजिए क्या कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है. राइट? देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई, n is 13. when we put this n upon 2, sorry this is 13 upon 2 into 13 minus 1 will become, correct है, 12 minus 1 13 minus 1 12 2 जा 24. it will be 24. राइट? तो देखिए यहां पर n की वैल्यू 13 थी, मैंने गलती से 12 दे दिया. तो वाई आई कमिट दिस टाइप ऑफ मिस्टेक, राइट? कभी कभी मैं ऐसे मिस्टेक परफॉर्म करता इसलिए हूं बिकॉज यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. राइट? यू कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट वेयर वी हैपेंड द मिस्टेक्स, है ना?
जैसे ही मैं रिजल्ट पे पहुंचा तो मुझे लगा कि एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, बिकॉज सो मेनी टाइम इन बोर्ड एग्जामिनेशंस देयर आर प्रेशर इन ऑन योर माइंड, है ना, प्रेशर्स होते हैं, जल्दी करना है, सही है या गलत है, राइट, एंड दैट प्रेशर समटाइम्स वी आर राइटिंग हियर, और पीछे पेज पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो नीचे लिख रहे होते हैं, ऊपर से देखते रहते हैं कि क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, वहां पे हम लोग कभी कभी n की वैल्यू 13 ना लेकर 12 ले लिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एट दैट पॉइंट यू हैव टू वेरी मच कंसर्न, Here I'm solving on board, so I'm quite confident that once I revise the term, I will get the mistake easily, है ना, आसानी से मैं मिस्टेक को फाइंड आउट कर सकता हूँ, लोकेट कर सकता हूँ. But in examination, you will not be so comfortable to find out your mistakes, right? So be careful in solving the sums, right? तो 12 n की वैल्यू 12 हमने यहाँ पे रखी, 13 रखी, 13 minus 1 it will become 12 या 24. सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 minus 4 it will become 4. तो 4 से 24, 4 से 24 कैरी 2, 4 24 और 2 26, it will become 264, right? So 264 is the sum of the given term. Sorry, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, यहाँ से करते हैं. देखिए 13/2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 13/2 विल रिमेन सेम, इट विल बिकम 2 4 जाए 2 3 जा 6 प्लस 13 minus 1 12, 12 2 जा 24, इट विल बी minus 24. तो 13/2 into 8 minus 4 4 6 minus 2 4 2 22 टाइम ये कट जाएगा, राइट. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 into 22. when you multiply 13 into 22 it will become 2 3 जा 6 carry 1, right, 2 जा 2 और 2 3 जा 6 6 और 2 8 286. So sum will be 286. I'm committing the mistakes, right? I'm committing the mistake. Why? It is intentionally, है ना, मैं intentionally mistake commit कर रहा हूँ because I just want to make you aware that in examination so many times happen with the students that they commit the mistakes and forget to revise it, है ना, गलती कर देते हैं लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है, ठीक है. तो जब गलती हो जाती है तो पता नहीं चल पाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिवीजन इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट. You have to revise the sum again and again. You don't have so much time in case of maths itself, है ना. मैथ्स के केस में टाइम बहुत कम होता है, तो वहां पे क्या करना होता है, जब हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तुरंत एक बार शॉर्ट वर्ड आई यूज के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी. तो मैं जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया मुझे लगा कि एक बार रिवाइज करना चाहिए. क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल वहां पर की कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहां पे थोड़े नंबर्स की मिस्टेक हो जाते हैं. मैंने देखा कि मैं 12 ना 13 ना लेके 12 ले लिया, तो 13 फिर मैंने लिया और इसको फिर सॉल्व किया, देन वी गेट 286, राइट. सो ट्राई टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, ट्रिक्स, so that you can never commit the mistakes, right. तो ये सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है. Now you have to solve the first and third part of the same question. I'm going to solve the next question, that is third क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसके जो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट है वो आप लोगों को सॉल्व करना है, करेक्ट. Now see the third part of the same exercise, that is in an AP, एक AP दिया हुआ है, सीरीज नहीं दी हुई है. In an AP, this is the third question of exercise, NCERT 5.3. In an AP, इसके भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, राइट. आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज. थर्ड फर्स्ट, in an AP, given that A equal to 5, B equal to 3, nth term is given 50, find n and Sn. n और Sn फाइंड आउट करना है, जबकि कुछ चीजें आपको दी गई हैं, ठीक है. A, D, An need to find out n and Sn, right. तो जब an दिया होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव गिवन n, है ना.
तो जब भी nth टर्म दिया हो और n निकालना हो, d निकालना हो, इस तरीके से कोई टर्म निकालना होता है तो पहले हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. an इज गिवन व्हाट 50. 50 equal to 5 plus n minus 1 into d is 3. So 5 will come in left side, become minus, right? So 45 हो जाएगा. 50 minus 5, 45 equal to 3 n minus 1. 3 will divide. So n minus 1 equal to 45 divided by 3. It will become 3 1 ja 3 5 ja 50. n will become minus 1 will come right side will become plus, right? So 15 plus 1 will become 16. So n is 16, right? So n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. तो इधर Sn सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n अपॉन 2 2a plus n minus 1 into t, right? Note down all these things with me, right? Don't commit mistakes, right? मेरे साथ ही नोट करते जाइए. Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. What is the value of n? n is 16 upon 2 2 into a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई है 16 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी दी हुई है 3. सो 16 अपॉन 2 विल बी 8 2 5 जा 10 16 माइनस 1 15 एंड 15 3 जा 45 45 10 55 55 into 8, right? 55 into 8 multiply 55 with 8 will we get 400. 5 8 ja 40 carry 4 5 8 ja 40 4 44 440, correct? So this is the first part of the third question. Note down, right? Note down all these things. I am going to solve the fourth part of the same question. Fourth part करते हैं. मैं second और third question will be solved by you at your home because the things are same. कुछ खास डिफरेंस नहीं है. हर बार हमको एक बार फर्स्ट विल यूज an then we'll use sn to find something which is missing. a d n में से जो भी मिसिंग होगा वो यहां से निकालेंगे फिर उसको यहाँ पे पुट करेंगे, राइट? तो द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट विल बी डन बाय यू एट योर होम. आई एम गोइंग टू सॉल्व fourth part of the question, fourth question of the third. Question is given A3 equal to 15, S10 equal to 125, find D and A. Base, common difference and A10, sorry, 10th term. Right? So A3 S10 is given, third term and sum of 10 term is given. Find the value of D and A10. Common difference and 10th term you need to find out. अब देखिए क्या करना है इसमें. Again A3 third term of the sequence will be write as A plus 2B. क्या होगा? इसके पहले ही मैंने बताया था जो जनरल टर्म्स होते हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर थर्ड टर्म की बात हो रही है तो 3 से जस्ट पहले क्या आता है 2a प्लस 2d इक्वल टू हाउ मच 50. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. S10 मीन्स सम ऑफ 10 टर्म है ना. तो सम ऑफ 10 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम ऑफ 10 टर्म फॉर्मूला विल बी n अपॉन 2. इट मीन्स 10 upon 2 2a plus 10 minus 1 into d. It is given 125. You can also write as 2 5 ja 10 and 5 will come is at this side to divide है ना. 5 की तरह के डिवाइड हो जाएगा तो बच के जाएगा. देखिए 2a plus 9d 2a plus 10 minus 1d equal to 125 on 5 2 जा 10 5 जा 25. So S10 की वैल्यू आ गई 2a plus 9d which is equal to 25. This is second equation, correct? 2a plus 9d equal to 25 है second equation. ठीक है. अब हमें कोई एक
दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालनी है। सो इन इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2a हो जाएगा, यहाँ पे 2a है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इसमें से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2a प्लस 4b, करेक्ट। लेफ्ट साइड में 2a प्लस 4b, क्योंकि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें से माइनस कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन को, यानी कि 2a प्लस 9b को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला एक साथ माइनस होगा, लिख दिया मैंने, ठीक है। राइट साइड में क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 50 या 40 माइनस राइट साइड और सेकेंड इक्वेशन 25, क्या जाएगा 2a प्लस 4b माइनस 2a माइनस 9b will become 5, 30 minus 25, 5. 2a cancel, 4d minus 9d will become minus 5d equal to 5. तो d become minus 1. d की वैल्यू क्या गई, minus 1. Put in equation first. इक्वेशन फोर्थ में पुट कर देते हैं डी की वैल्यू, तो जाएगा a प्लस 2 इंटू माइनस 1 बिकम 15. सो a माइनस 2 15, a इक्वल टू 15 और 2 17. a क्या गया 17, राइट। सो कॉमन डिफरेंस इज -1 एंड द फर्स्ट टर्म इज 17. Now you need to find out 10th term of the sequence, ठीक है। तो a 10th term of the sequence, a प्लस 9d होता है ना, 10 के जस्ट पहले 9d, तो बिकम a is 17 प्लस 9 इंटू d is -1. सो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 9 करेंगे 8, करेक्ट। सो 10th term will be 8. 10th term of the sequence will be 8. Correct? Now I'm going to solve the next question. Don't forget to note down. सारी चीजों को लिखते हुए चलिए. Come to the next question. थर्ड क्वेश्चन की पार्ट करेंगे. So whatever question I am solving, these questions are very important because so many times in board examination these questions were asked, right? So you need to revise and solve the various type of questions, है ना. देखिए हर एक क्वेश्चन में वेराइटीज है ना. कोई क्वेश्चन हम छोड़ देंगे तो फिर हम लोग को ही प्रॉब्लम होगी. इट्स बेटर कि हम लोग सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस को. एटलीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सॉल्व करिए. क्वेश्चन नंबर 8. आई एम चूजिंग द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है. बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिए. 8th question is given as an equal to 4, d equal to 2, Sn is given -14. Find n and a. देखिए यहां पर a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, n और a फाइंड आउट करना है. तो nth टर्म इज गिवन 4. इट मीन्स दैट nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 4. ये दिया है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 4. nth टर्म का फॉर्मूला ये तो होता है a प्लस n माइनस इंटू d. जहां पर d है वहां पे हम 2 पुट कर सकते हैं बिकॉज इट इज गिवन. सो a प्लस 2n माइनस 1 इक्वल टू 4. a plus 2 minus 1 equal to 4. When you open the bracket, 2n minus 2 become 4. 2n minus 2 become 4. a plus 2n equal to minus 2 become this side become plus 4 to 6. a plus 2n equal to 6 आ गया, ठीक है. इसको भी हम छोड़ देते हैं. आते हैं Sn पे. Sn से हमको क्या मिल सकता है? Sn equal to -16, but the formula is n upon 2
2a plus n minus 1 into d। तो देखिए n अपॉन 2 विल रिमेन सेम, यहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, 2a पे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, n भी गिवन नहीं है, d की वैल्यू हमको पता है इट इज 2, करेक्ट, ओके। n अपॉन 2 2a plus n minus 1 into 2, correct। Now see, Sn is given minus 14, Sn की वैल्यू दी हुई है minus 14, correct। 2 will come in this time, get multiply, cross multiply होगा, 14 2 जा 28, will become minus 28, 2 cross multiply होगी, घर चलाया minus 28। एंड इन ब्रैकेट देखिए, अब यहां पर क्या है, दो वेरिएबल्स दे दिए गए हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से n की वैल्यू या फिर a की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, है ना। तो a की वैल्यू पुट करते हैं, तो a की वैल्यू आई क्या, a इक्वल टू 6 माइनस 2n आएगा, 6 माइनस 2n, 2n राइट साइड में आएगा, माइनस जाएगा, राइट। तो पुट a इक्वल टू 6 माइनस 2n इन दिस इक्वेशन, राइट। तो बिकम 2 a की जगह पे 6 minus 2n plus n minus 1 into 2। Note down one thing students, these all chapters are connected by one another, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों, देखिए दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, है ना। बट इफ यू डिड नॉट स्टडी द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट, देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। तो इसीलिए वहां पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, तभी सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं इसको, तो n इज आउटसाइड द ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट इट विल बी, ब्रैकेट ओपन करते हैं थोड़ा, 6 2 जा 12 माइनस 2 2 जा 4n प्लस 2n माइनस 2, करेक्ट, 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस 28, here will be राइट साइड में माइनस 28, ठीक है। ये हो जाएगा n इन ब्रैकेट 12 माइनस 2 10 एंड विल बिकम 4n माइनस 2n माइनस 2n इक्वल टू माइनस 28, करेक्ट। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n इक्वल टू माइनस 28, यहाँ पे n मल्टीप्लाई माइनस 2n स्क्वायर 10n, 2 कॉमन लेके हम कट कर सकते हैं, माइनस साइन भी कॉमन लेके हटा सकते हैं। सो माइनस 2 अगर कॉमन ले बचेगा यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 2 5 10n इक्वल टू माइनस 28, कैंसिल, एंड 2 14 जा 28, सो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अगर इसको फैक्टराइज करें तो 14, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 14 बन जा 14, और 14 को फैक्टराइज अगर कर दें 2 7 जा 14, 7 बन जा 7, राइट। तो 7 माइनस 2 विल गिव 5, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 7, यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7 इज कॉमन, यहाँ बचेगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। n की वैल्यू यहाँ पर 7 आएगी, इसको जब लेंगे n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 7 आएगी, है ना। तो दिस विल बी द करेक्ट वैल्यू, n की वैल्यू माइनस 2 नहीं हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म शुड बी नेचुरल, है ना। नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वो हमेशा नेचुरल होने चाहिए, इट शुड बी नॉट निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ से तो n की वैल्यू माइनस 2 आएगी, क्योंकि अवॉइडेबल होगी, n की वैल्यू 7 होगी। अब देखिए n की वैल्यू 7 आ गई, पहला पार्ट प्रूव हो चुका है। अब हम निकाल लेते हैं दूसरा पार्ट, तो n की जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, करेक्ट। all these things are going to put the value of n in any one of this equation, n equal to 7 यहाँ पर किए, a की वैल्यू को निकालनी है 7 माइनस 1 6 और d की वैल्यू 2 गिवन है ना। तो a प्लस 6 to 12 इक्वल टू 4, so a इक्वल टू 4 माइनस 12 इट विल बिकम, माइनस कर देंगे माइनस 8, so a की वैल्यू आ गई माइनस 8, करेक्ट। so a की वैल्यू हो गई माइनस 8, राइट, एंड n की वैल्यू हो गई 7, करेक्ट। So in this way you will have to solve the problems. So class,
I'll explain to you here, you've done all these things first in class or copy, and I'll explain so many questions in the class itself, right? Now you will have to solve the other question, whatever I've not solved in the classroom, here in the videos lecture, that question will not be remain unsolved. उसको unsolved मत छोड़िएगा, because you never know that which question will ask in your examination, right? So try to solve all the question, and if you are facing any problem to solving any question, I will make one video on the same problems, right? I will collect the problems given by you in the group, and I will make video for solving all that problems, right? So post your problems, queries in your group so that I can resolve it. Right, so these all are the some you will have to solve your class of copy. Next, in the next class, I am going to explain the next question, है ना? 4th question हम लोग solve करेंगे, 5th question solve करेंगे, कुछ homework भी देंगे, इस साइड 5.3 के आगे क्वेश्चन solve होंगे. Okay, thank you so much.